In last class, we had discussed some examples of work. Let's today also see more examples on that. Okay. For example, student, let a gas at a pressure P is enclosed in a cylinder. Likewise, that this is a cylinder, and in that a gas is enclosed. Correct? You know, piston. This concept will be applied in the case of heat and thermodynamics, the last chapter. A gas at a pressure P is enclosed. Pressure P is given with a movable piston. It is asking work done by the gas producing a small displacement. क्योंकि अगर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा तो अगर मैं नीचे की तरफ पुश कर सकता हूँ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx, यानी तो फिर ऊपर की तरफ भी थोड़ा dx डिस्प्लेस कर सकता हूँ. तो we have to find work done by the gas, right? Work done by the gas producing small displacement. Work done by the gas producing small displacement dx of the piston is students dw is equal to, you know, f dot dx. Yes or no? Student, you know, pressure is equal to force by area. So from there I can write force is equal to pressure into area. Because if a cylinder is given, we can also find its pressure area. And in place of force, I can write pressure into area into dx. And if area will be remaining fixed, if the small change in displacement is going to change the volume. So area into dx is going to give me change in volume. So that can also be written as P into delta V. Delta V is dV is volume. Understood? So total work done by the gas during the change, right? Total work done, right? Total work done by the gas during the change, in its volume from V1 to V2, from V1 to V2 is work done is equal to how much, student? Volume is changing, that is P dV. Keep in mind V1 to V2. This one will be applicable in the last chapter of the 11th, heat and thermodynamics. How much work will be done if with some temperature the volume is changing and pressure will be given. In that case, we can find how the pressure is changing, P into dV, and the volume is changing from initial volume V1 to V2. That will be giving us the work done. Just note it. Let's see another example here, one illustration. Students, there is a block of mass 5 kg. एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और मैंने उसको वर्टिकली रेस्ट किया. इट इज बीइंग रेस्ट वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. मैंने एक स्ट्रिंग के जरिए उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग के बाद आया मतलब उस पर टेंशन वाला फोर्स आ सकता है, आएगा. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, इट राइजेस विद एन एक्सीलरेशन. ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ और अंडर वैल्यू इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Find the work done by the tension in the string if the block is raised by 2.5 meter, right? Find the work done. Find the work done by the tension. Find the work done by the tension in the string if the block rises by 2.5 meter. If the block rises by 2.5 meter. Okay. And also let's find the work done by the gravity. Also find the work done by gravity. Also find the work done by gravity
and the net work done. And the net work done. ठीक है, फिर देखो पहले टेंशन के जरिए कितना वर्क डन हो रहा है देख लेते हैं, फिर ग्रेविटी के दौरान देखेंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूं, इस पे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यू नो ऑलवेज वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, mg ऊपर की तरफ टेंशन और बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लॉज ऑफ मोशन पे हम ऑलरेडी उसको उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और इक्वेशंस भी लिखे हैं। फोर्स इक्वेशन T ऊपर की तरफ है, T minus mg will be equal to m into a. So the tension is going to be ma plus mg, correct? And mass is 5 and acceleration is 2 plus g is 9.8. 2 plus 9.8 into 5, that is I think around 59 Newton. So the tension is going to be 59 Newton. And student टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है और बॉडी ऊपर की तरफ भी डिस्प्लेस हो रहा है और दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 2.5 मीटर. So work done by the tension, work done by tension, W is equal to Fs, same direction में है, theta 0 degree. So directly you can write tension dot S. So S is equal to angle is 0 degree. So tension is 59 we got and the displacement is 2.5. By multiplying that we can get 147.5 joule. Is that clear? Then it is asking what is the work done by gravity, right? Work done by gravity. Gravity means the force is gravity. That is gravity नीचे की तरफ act कर रहा है और body ऊपर की तरफ displace कर रहा है, तो angle theta is 180 degree. If angle theta is 180 degree, then work done will be negative and that is equal to minus mgs. So that is minus 5 into g is 9.8 into displacement is 2.5. By multiplying you will get minus 122.5 joule. ऊपर की तरफ 147.5 वर्क डन हो रहा है और नीचे की तरफ माइनस 122.5 जूल काम हो रहा है. सो उसने नेट वर्क डन पूछा है. इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग नेट वर्क डन. ऑल आर राइटिंग और नॉट? सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 147.5 माइनस 122.5. तो पूरा सब्सट्रैक्ट करने के बाद आई थिंक 25 जूल is the required answer to the question. Just note it and ask me the doubt. Let's see another example. मतलब inclined वाला केस एक देखते हैं. मैंने इसकी थ्योरी बता चुका हूँ. Just to put some values with that. एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, करेक्ट? और लेंथ ऑफ द प्लेन इज 3 मीटर. टोटल जो ये प्लेन की लेंथ है इंक्लिनेशन की, दैट इज 3 मीटर. इतना दिया हुआ है, ठीक है? और ये पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2 इज आल्सो गिवन. तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. ठीक है, ये सारे हमें निकालने के लिए उसने दिया हुआ है. मतलब ही इज आल्सो आस्किंग also find the normal reaction, क्योंकि normal force निकालने के लिए हमें मतलब जीरो हो सकता है वो perpendicular, but let's find the normal reaction also so that we can once again revise the things that you have already learned before. Just draw it. Work done by gravity, that means gravity, you know, from the, if this is mg, already you know this is normal reaction, this is 37 means this will be 37 and this is mg cos 37. But the direction of the component of force along the direction of displacement is what? mg sin 37. Is that clear to all? So if I will be finding work done by gravity, if I will be finding work done by gravity, then it will be how much? mg sin 37 into displacement is how much? 3 meter. Yes or no, students? This is 3 meter.
Yes, sir. So let's find the value. N is 4. G take 9.8 into 3 into sine 37. Sine 37 is how much? 3/5. Yes. This is 37. This is 53. This is 3, 4, 5. So sine 37 is 3/5. And by solving the total thing, you will get near about 70.56 joule. That is the work done by gravity, correct? Then work done by friction. Work done by frictional force, because work done by normal force is going to be 0. But it will be required to calculate normal force, because that is force of friction into displacement. And force of friction is equal to how much? Because force of friction is acting in this direction and displacement is in this direction. So angle between them is how much? 180 degree. So F dot S, so that is equal to force of friction is mu into normal reaction into displacement X into cos 180 degree. Mu is how much here? 0.2 given in the question. And from the diagram itself, you can know normal reaction is equal to mg cos 37. N is equal to how much here? Mg cos 37. Not that much difficult, all those things, very easy. So normal reaction is mg cos 37 into displacement is how much? 3 meter. And this is -1 for cos 180. So by putting all the values, let's calculate the work done by friction. 0.2 into 4 into 9.8 into 4/5 into 3. So that is equal to, by calculating minus, is for the option 18.816 joule. Correct. And work done by normal force. You see, normal force is acting perpendicular and displacement. Normal force is acting in this direction. Correct. The normal force is acting. Always normal force acts perpendicular to the surface in contact. This is the normal force and body is getting displaced in this direction. This angle is 90 degrees. So work done by normal force is going to be 0. Correct. Because force and displacement both are perpendicular. Just note it. As I told you, area under force and displacement graph gives what? Work done. Yes or no? So let's take a 5 kg block. Mass of the block is given 5 kg. And it moves in a straight line on a horizontal frictionless surface under the influence of a force. जैसे कि इस तरह से ले सकते हैं. This is origin. इस एक्सिस पे फोर्स लिया गया है. That is in न्यूटन. ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन पे आपको ये करने के लिए न्यूटन पे दिया होगा, बिना कन्वर्ट करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है. 0 यहाँ पर 5 न्यूटन और यहाँ पर 10 न्यूटन ले लो. नीचे की तरफ भी -5 न्यूटन. इस तरफ कुछ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर कुछ स्प्लिट किया है. ठीक है. और कैसे, मतलब एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स कैसे पोजीशन वेरी कर रहा है वो दे रखा है क्वेश्चन पे इस तरह कुछ. जस्ट लेट्स सी द पाथ इज गिवन लाइक दिस. मतलब यहाँ से 10 से शुरू हुआ, फिर यहाँ से 4 तक आ गया. करेक्ट. फिर अलोंग 4 to 6 इस तरह रहा. जिस रेड लाइन पे दे रहा हूँ, मतलब कैसे फोर्स वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ. फिर यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ले लूँ तो ये इस तरह 5 तक आ गया. जस्ट अ मिनट. ये यहाँ तक आया 5 तक, फिर जाके यहाँ पर एंड हुआ. समझ पे आ रहा है पूरा फिगर. इस तरह आया, फिर इस तरह, फिर इस तरह से, फिर इस तरह. तो इसका मतलब क्या है, मुझे पूरा वर्क डन निकालना है. वर्क डन निकालना मतलब उसने पूछा फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज इट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ओरिजिन मतलब 0 to 8 मीटर तक कितना हो रहा है. तो यहाँ से अगर ग्राफिकली में देखूं तो यहाँ पर हम एरिया निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया, और यहाँ पर तो कांस्टेंट है 0, और फिर इसका एरिया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर ये वाला एरिया पॉजिटिव एरिया है और यहाँ पर एरिया क्या होगा, नेगेटिव, तो नेट एरिया निकाल के मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा, राइट. सो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व गिव्स वर्क डन. सो यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर एफ एक्स कर्व. ठीक है. हाउ टू फाइंड द एरिया. सी, ये एक ट्रेपेजियम है मुझे लग रहा है. यू कैन से दिस वन इज अ ट्रेपेजियम. हाँ, half of sum of parallel sides.
हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना हुआ पैरेलल साइड्स, दिस इज 2 and this is 4. Yes or no? 2 plus 4 6. Yes or no, students? Into height is 10. So how much it became total? And this area we have to subtract. This is the triangle area, half into base into height. Base कितना है 6 to 8 मतलब 2, height मतलब 5. Yes or no? मतलब आप 5 ले सकते हैं, अगर -5 डालोगे तो भी आप -5 लिखने से भी हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट आंसर सेम आ जाएगा. 2 plus 4 is 6, 3 30, 30 minus 5, correct? So that is 25 joule. So work done will be 25 joule. Understood or not? Yes. कि एक ब्लॉक जिसका मास 4 kg है, राइट, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, करेक्ट, इसका जो मास है वो 4 kg है. ड्रैग 2 मीटर लंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब मैंने इसको डिस्प्लेस किया 2 मीटर, ठीक है, जबकि मैंने एक फोर्स अप्लाई किया कितना 30 न्यूटन, और वो 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कहीं इस तरह से मैंने कुछ एक फोर्स अप्लाई किया जिसका वैल्यू 30 न्यूटन है, और मैंने 53 डिग्री बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है. उसने पूछा है कि इनिशियल स्पीड जो था वो 3 मीटर पर सेकंड था, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा है 1/8 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ब्लॉक कितना होगा, ठीक है. तो स्टूडेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आप देख सकते हो, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो दिखाता है थोड़ा, mg नीचे की तरफ, जैसे एज यूजुअल नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, अप्लाइड फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इस तरफ काम कर रहा है f cos 53, करेक्ट, and another one is acting along this direction, that is f sin 33, sin 53, correct? Yes or no? So or force of friction always opposite to the direction of relative motion को हमेशा अपोज करता है वो. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग दिस लाइन हो रहा है, और ये परपेंडिकुलर, तो वो भी 0 हो जाएगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर बात करूं तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और बॉडी राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल इज 90 डिग्री, तो दोनों की वजह से 0 हो गया. अभी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई विल बी सेइंग अबाउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, F applied, so that is equal to कितना फोर्स में दे रहा हूं, F cos 53 into displacement, correct? So that is F cos 53, component of force along the direction of displacement, into S, so that is Fs cos 53, जो कि हम आराम से निकाल देंगे. अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, so that is equal to फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा, माइनस Fs, force of friction into S, so that is equal to how much, mu into normal reaction, mu k मूव कर रहा है, into displacement, and you know normal reaction how much here, ऊपर की तरफ normal reaction, ऊपर की तरफ f sin थीटा, नीचे की तरफ mg. अगर मैं इक्विलिब्रियम वाला केस बनाऊं तो आप देख सकते हो n plus f sin 53, जो दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, that is equal to mg, है ना. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया स्टूडेंट्स, mg minus f sin 53, है ना. तो इसको अगर हम देखेंगे, अभी निकाल के नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, 30, मतलब एक मिनट, जस्ट अ मिनट, नॉर्मल रिएक्शन अगर हम निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू f sin 53, ठीक है. उसको हम रिप्लेस कर देंगे अभी. तो देखो, अभी हमें यहाँ पर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल दिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल दिए. फ्रेंड्स देखो, एक वर्क एनर्जी थ्योरम है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है. जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम एक है जो हम पढ़ेंगे अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, मान के चलो स्टूडेंट्स, एक बॉडी यहाँ पर जिसका मास m है, u वेलोसिटी में जा रहा था, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गया. क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कुछ फोर्स दिया, फोर्स देने की वजह से तो वेलोसिटी चेंज हुआ, नहीं तो कैसे चेंज हो सकता है, मैजिक तो नहीं होगा ना कि अपने आप चेंज हो जाएगा. और मैंने फोर्स दिया और कुछ डिस्प्लेस भी बॉडी हुआ है, क्योंकि u टू v होने में तो कुछ टाइम तो लगा है, बट कुछ डिस्प्लेस भी हो गया. ऐसा नहीं कि वहीं पे खड़ा था u, फिर वहीं पे होके v हो जाएगा, नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मूव कर रहा होगा ना. और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो s मान के चलो.
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं जो हम पढ़ेंगे, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी फाइनल minus kinetic energy initial, so that is half mv square minus half mu square. See very carefully and try to understand. So that is half m taking common v square minus u square. ये आप अपनी अर्ली 9th में भी पढ़ चुके हो. So v square minus u square is equal to 2as, 2 cancel, so that is mas, and you know force is equal to mass into acceleration into s, so that is equal to work done. So you got an idea that change in kinetic energy is equal to work done. अगर हम इसी को निकालें, उसने पूछा है क्वेश्चन पे फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसने नेट वर्क डन पूछा है, राइट। तो अगर नेट वर्क डन पूछ निकाल लेंगे तो फ्रंट की तरफ कुछ वर्क हो रहा है, पीछे की तरफ भी कुछ वर्क हो रहा है, मतलब नेट वर्क की अगर बात करें तो डब्ल्यू एफ अप्लाइड माइनस डब्ल्यू फ्रिक्शन, क्योंकि डब्ल्यू एफ अप्लाइड ज्यादा हो रहा है तभी तो जाके बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं तो कैसे डिस्प्लेस होगा। तो so the algebraic sum of the work done by all the forces will be giving me the change in kinetic energy. तो अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू, मतलब देखो यहाँ पर वर्क डन बाय, अगर इसकी मैं बात करूं एफ एस कॉस 53 की अगर बात करें हम, तो अब देख सकते हो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सो दैट इज 30 दिया हुआ है, एफ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, म्यू के इज 1/8, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 0.6 शायद, हाँ हो गया, दैट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कितना है वर्क डन, देखो mg माइनस एफ साइन थीटा है ना, है कि नहीं, mg माइनस एफ साइन थीटा। सो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आप यू कैन सी फ्रॉम हियर, पहले मैं आपको बता देता हूँ, सो डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन का क्या है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg माइनस एफ साइन थीटा होल इंटू डिस्प्लेसमेंट s, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, वो हम निकाले हमने अभी, ठीक है। तो अभी पूरा चीज को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, करेक्ट। जस्ट अ मिनट में इस लाइन को थोड़ा कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ से मैंने कॉमन लेके करने की, डायरेक्टली आप यहाँ यहीं से लिखना शुरू करो, ठीक है। जस्ट सी हियर, सो दैट इज एफ कितना है 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, कॉस 30, यू नो कॉस 53 इज हाउ मच, 3/5. 3/5 मतलब 0.6 ले सकते हैं ना, Yes. माइनस म्यू के कितना है 1/8 दिया हुआ है, mg मतलब कितना है वेट 4 है, जी मतलब 4 kg, जी को 10 ले लो, माइनस एफ साइन 30 मतलब एफ कितना है, एफ इज गिवन 30 एंड साइन 30, साइन 53 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ 4/5. 30 इंटू साइन 53 इज हाउ मच, 4/5. साइन 53 ले लो और डिस्प्लेसमेंट में बाद में 2 मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 32 जूल। सो दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उसने पूछा है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू गॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू 32 जूल एनर्जी, हाउ मच एनर्जी यू हैव, दैट मच वर्क यू कैन डू, सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज व्हाट एनर्जी ना, सो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी वही जूल, 32 जूल। सेकंड में पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, सो दैट मींस 32 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर, जबकि u 3 दिया हुआ था, ठीक है। सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू u कितना दिया हुआ था 3 का स्क्वायर दिया हुआ था, m कॉमन ले लो डिवाइड कर दो, m 4 है ना, सो 32 हाफ भी कॉमन ले लो, 32 इंटू 2 उस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 4 लेके डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 9 है ना। यस सो अभी आप देख सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो मुझे फाइनल वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, देखो 2, 5 5. तो v इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, यस जस्ट नोट इट।
एक और एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जो हम आगे जाके फेस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक रॉड है, दिस रॉड, हैविंग मास m, यहाँ पर मास जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसीलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या करते, मैं वही क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये रॉड का लेंथ l है और ये वर्टिकली अपराइट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस जैसे दिखा गया है। उसने पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, उसने पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, find the potential energy of the rod if the zero potential, if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface। मतलब जब ग्राउंड पे पड़ा हुआ था तो एनर्जी कुछ नहीं था, जब मैंने उसको उठा के ऐसे रख दिया तो कितना वर्क किया। सिंपल चीज क्या है स्टूडेंट्स, अगर लेंथ l है तो क्या करेंगे, क्या बताऊंगा मैं, mgl/2 कर देंगे ना, ठीक है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सेंटर मास को उठाया, पहले उसने ऐसे ग्राउंड पे लटका के खड़ा था, मतलब ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, सेंटर मास इस लेवल पे था, सॉरी सेंटर मास अभी इस लेवल पे था, ठीक है। अभी मैंने सेंटर मास को इतना उठा दिया, तो सिंपल अगर देख के पता चलेगा तो mgl/2 है कि नहीं। बट मैं अभी बताने जा रहा हूं कि इस mgl/2 को हम एक अलग तरीके से डिसाइड करेंगे, मतलब निकालेंगे, जो कि हमें बाद में हेल्प होगा अगर रॉड की मास यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है। इट इज नॉट वेरिंग यूनिफॉर्मली, मास पर यूनिट लेंथ कुछ अलग है, द मास इज नॉट यूनिफॉर्म। तो उस केस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट मतलब कुछ एज्यूम्पशंस लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने इस रॉड का एक छोटा सा मास लिया, ठीक है। आई जस्ट कंसिडर्ड, वी जस्ट कंसिडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट उसका जिसका मास dm है, और वो मान के चलो y हाइट पे रखा गया है यहां से, एंड दिस थिकनेस इज dy, करेक्ट है ना। लेट क्वेश्चन पे k दिया हुआ है, k मतलब मास पर यूनिट लेंथ, जो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन पे। सो दैट इज इक्वल टू m/l, है ना। शुभम, पूरा लिसनिंग और नॉट। सो अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लिया dm, तो छोटा एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा dm का, सो दैट इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dy। दिस इज द वे टू फाइंड द मास, यस और नो। हियर m/l इज यूनिफॉर्म, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया होता तो उसको पुट करते हम, एंड वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, potential energy, that is work done is equal to how much, m/l, ठीक है, into total mass mg into y dy। मतलब ये जो m/l dy, चलो कंफ्यूज नहीं होना, m/l dy मैंने ले लिया dm into वेट mg, g मल्टीप्लाई कर दिया इंटू कितना लिए हैं हम, हाइट dy, सॉरी y हाइट पे है वो, दैट इज हाइट y, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर y हाइट पे है ना, तो यहाँ पर कितना एनर्जी होगा mgh, dm मतलब dm का वैल्यू क्या डाला हमने, m/l into dy, इंटू उस पार्ट का वेट कितना है g, इंटू y, y हाइट पे है वो, करेक्ट है ना। सो अगर हमें u निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें dy को इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो m/l इंटू g इंटू y dy, और लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ 0, पूरा लेंथ l, सो द लेंथ इज मतलब y वेरी कर रहा है, y मतलब लेंथ वाइज वेरी कर रहा है, तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, करेक्ट। तो चलो थोड़ा इसको डिराइव करके दिखते हैं। सो फाइनल दैट इज गोइंग टू बी m/l ले लिए हमने, g भी कांस्टेंट बाहर ले लिए, अंदर पे y dy ले लिए 0 टू l, करेक्ट। सो दैट इज mg/l, y का इंटीग्रेशन क्या है, y²/2 into 0 to l, है ना। सो दैट इज इक्वल टू
एम जी बाई एल, टू को हमने बाहर ले लिए, वाई स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस 0। सो दैट इज इक्वल टू बाय सॉल्विंग एल एल कैंसिल करने के बाद कितना आ गया हमें, एम जी एल बाई 2 आ गया ना। मतलब यहाँ पर तो यूनिफॉर्म था इसलिए आपने m बाई जी को ऐसे लिख दिया तो आ गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह की क्वेश्चंस मिलेगा, तो वहां पर आप थोड़ा नोट्स देख के इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देखना, ठीक है।